Period 17, class 10 for English language, date of 2nd July 21. Topic interchange of the sentence, affirmative to negative. My dear children, you know about interchange of the sentences, that it is described in previous videos. As I hope that you will understand topic easily, and it is very interesting to change affirmative to negative. As I know that affirmative sentence is a sentence which admit any kinds of deeds or actions by noun or pronoun. But when we change into a negative, then it is rejected or neglected by noun or pronoun to any kinds of deeds or actions. So it is necessary to know that what rules apply to interchange affirmative to negative. First of all, you should know that we often change affirmative to negative according to tense. With helping verb, we use often not, as in present tense, do or does not, as in present continuous, is, am, are, not, and as in present perfect tense, has not, have not, present perfect continuous, have not been, has not been. As in past tense, past indefinite did not, past continuous was, were not, past perfect tense had not, and past perfect continuous had not been. This is the process of changing according to tense. But other rules also, as when use never in place of not, there is no need to add helping verb, and sometimes sentence is started giving negative sense as don't, didn't, would not, cannot, can't. These are many examples to apply for it. So now we start first rule. To change affirmative to negative sentence, there are many rules, but some of them are given. अंडर ही फर्स्ट रूल है जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के आधार पर बदलना। एज प्रेजेंट टेंस we often use do, does, is, has, had, has not,
not being or not in other helping verbs. Example: he goes to Delhi every month. वह हर महीने दिल्ली जाता है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग इसमें क्या लाएंगे? पर्सन और नंबर के अनुसार। ये सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डज नॉट यूज करेंगे। क्यों? व्हाई? डज नॉट यूज ऑफन इन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, मोस्टली इन थर्ड पर्सन, नाउन और प्रोनाउन। He does not go to Delhi every month. नेक्स्ट रूल है इसका, यू हेल्प द नीडी पर्सन। आप जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करते हैं। इसका निगेटिव बनाएंगे, यू डू नॉट हेल्प द नीडी पर्सन। आप जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद नहीं करते हैं। तो ये जनरल तौर से समझ गए होंगे प्रेजेंट टेंस। वी ऑफन यूज डू और डज नॉट, डू एंड डज नॉट इन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। इसमें लिखे दे रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ऑफन यूज डज नॉट एंड डू। In present continuous tense, as example are given, we are playing cricket in the field. We are playing cricket in the field. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है बच्चों। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर यूज होता है, तो कन्फर्म है। इसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट का यूज करते हैं। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। I am writing an essay इसका निगेटिव बनाएंगे, I am not writing an essay।
यहाँ पर नॉट का यूज होगा। इसी में टॉपिक आपका परफेक्ट टेंस में पढ़ रहा है, तो परफेक्ट टेंस में भी हम सेम प्रोसेस होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। वी यूज ऑफन नॉट, डोंट एवर आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, बट मोस्टली नॉट यूज आफ्टर हेल्पिंग वर्ब as he has spoken the truth. इसको जब हम चेंज करेंगे, he has not spoken the truth. Has के बाद नॉट है यहाँ पर, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बच्चों, समझ रहे होंगे। यू हैव डन योर वर्क, you have not done your work, ये भी आपका इसी टेंस से रिटर्न है। नाउ नेक्स्ट है आपका हैज बीन, हैव बीन, इसके आधार पर चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। इसको हम चल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। He has been living in Lucknow since 2016. ये टेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें इसको निगेटिव चेंज करना है। He has not been living in Lucknow since 2016। बीन से पहले यूज होता है ध्यान रखना। इसके बाद में ये प्रेजेंट टेंस के सारे नेगेटिव हैं। अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस सेम प्रोसेस होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे बच्चों। सपोज दैट पास्ट इंडिफिनिट टेंस में मैंने सेंटेंस लिखा he gave me a nice gift on my birthday। इस सेंटेंस कैसे मैंने पहचाना, आपने पहचाना ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही। क्यों बच्चों, कैसे आपने कॉम्बिनेशन किया बच्चों? इसलिए पहचान लिया आपने क्योंकि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें दिया गया है। गिफ्ट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? गेव होता है। तो यहाँ पर फॉर्म क्या है बच्चों? सेकेंड फॉर्म है। और ओनली वन टेंस है जिस पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। कौन सा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। सो वी कैन से दैट दिस सेंटेंस इज reflected in past indefinite tense। past indefinite tense है, श्योर सर्टेन है। past indefinite tense के साथ नेगेटिव बनाते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? बोलो। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है did not। he did not वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी यहाँ पे give me
a nice gift on my birthday. पास्ट कंटिन्यूअस में सेम प्रोसेस है बच्चों, इसमें डरने की बात नहीं है। He was playing hockey in the field. He was not playing hockey in the field. ये नॉट का प्रयोग हो गया, ठीक है। अब इसमें चेंज करेंगे, वर्ब का प्रयोग कब हो जाता है, जब कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है। यू वर गिविंग them some books, suppose that ये आ गया, तो इसमें भी आपको क्या करना है, you were not giving them some books, so ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इसी तरीके से आपको ये सेंटेंस पढ़ने हैं, कंप्लीट करने हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में चलते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस ये सारे टेंस हमने पढ़ा है, आपने पढ़ लिए, इसके बारे में आप जानते हैं इसमें क्या यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, कौन सी फॉर्म बनती है वर्ब की। आई होप दैट यू विल नो अबाउट इट। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है बच्चों, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। बहुत सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हैड का यूज होता है, ये आप समझ जाएंगे। ही हैड, he had completed his work with the help of teacher. He had completed his work with the help of teacher. वह अपने टीचर की मदद से अपना काम पूरा कर चुका था, कंप्लीट कर चुका था। So there is no problem to change into indicative as helping verb is given already. So after helping verb you can use or not to make it into negative sentence with the help of teacher. Very easy. Sometimes sentence is given as two clause, principal clause and subordinate clause. Then we feel some difficulty to find out as the patient had died before doctor came. There is no problem as had is given here. You can use not after helping verb. Had not died before doctor came. Perhaps some sentences as given
I reached the station after the train had gone. Suppose that sentence दिया गया है. There is no problem to find out the sentence and use negative. The sentence is given in past indefinite tense and the sentence is given in past perfect tense. There is two clauses. So I hope that you will not feel so difficulty as I did not reach the station after the train had gone. Okay? Past perfect tense. Now past continuous tense. Past continuous tense as though given example. She had been singing a song for an hour. So she had not been singing a song for an hour. Okay? Thank you all of you. इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस आपको मैं एक्सरसाइज सेंड करूँगा. आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत करते हुए सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे और इनको फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट रूल हम नेक्स्ट टर्न पढ़ाएंगे यानी कल. थैंक यू ऑल.